प्रोवर्ब्स चैप्टर 27 और 28 पढ़ेंगे किंग्स जेम्स वर्जन में से। सेल्फ लव, ट्रू लव, care to avoid offenses and the household care। फर्स्ट वर्ड से पढ़ेंगे। Boast not thyself of tomorrow, for thou knowest not what a day may bring forth. Let another man praise thee, and not thine own mouth, a stranger, and not thine own lips. A stone is heavy, and the sand weighty, but a fool's wrath is heavier than them both. Wrath is cruel, and anger is outrageous, but who is able to stand before envy? Open rebuke is better than secret love. Faithful are the wounds of a friend, but the kisses of an enemy are deceitful. The full soul loatheth an honeycomb, but to the hungry soul every bitter thing is sweet. As a bird that wandereth, ये वचन याद रखना, 7 वचन। As a bird that wandereth from her nest, so is a man that wandereth from his place. Ointment and perfume rejoice the heart, so doeth the sweetness of a man's friend by hearty counsel. Thine own friend and thy father's। 9th वचन को भी याद रखना। हम हिंदी में इन वचनों को देखेंगे तब पता चलेगा आपको कितना ज़रूरी था ये वचन। वैसे सारे वचन ज़रूरी है, हम पढ़ते ही जा रहे हैं। 10th वर्ड से आगे, thine own friend and thy father's friend forsake not, neither go into thy brother's house in the day of thy calamity, for better is a neighbor that is near than a brother far off. My son, be wise and make my heart glad, that I may answer him that reproacheth me. A prudent man foreseeth the evil and hideth himself, but the simple pass on and are punished. Take his garment that is surety for a stranger, and take a pledge of him for a strange woman. He that blesseth his friend with a loud voice, rising early in the morning, it shall be counted a curse to him. A continual dropping in a very rainy day, and a contentious woman are alike. Whosoever hideth the wind, and the ointment of his right hand, which bewareth itself. Iron sharpeneth iron, so a man sharpeneth the countenance of his friend. Whoso keepeth the fig tree shall eat the fruit thereof, so he that waiteth on his masters shall be honored. As in water face answereth to face, so the heart of a man to man। ये 19th वचन भी याद रखिए। Hell and destruction are never full, so the eyes of a man are never satisfied. As the fining pot for silver, and the furnace for gold, so is a man to his praise. Though thou shouldst bray a fool in a mortar, among wheat with a pestle, yet will not his foolishness depart from him. Be thou diligent to know the state of thy flocks, and look well to thy herds। 23 वचन याद रखना। हम इसको हिंदी में जब पढ़ेंगे तब आपको महत्व पता चलेगा। हम हिंदी वालों के लिए बोल रहे हैं, ओके। For riches are not forever, and doeth the crown endure to every generation.
The hay appeareth, and the tender grass sheweth itself, and herbs of the mountains are gathered. The lambs are for thy clothing, and the goats are the price of the field. And thou shalt have goats, milk enough for thy food, for the food of thy household, and for the maintenance for thy maidens. Chapter 28 verse पढ़ेंगे of impiety and religious integrity. First verse से पढ़ेंगे the wicked flee when no man pursueth, but the righteous are bold as a lion. For the transgression of a land many are the princes thereof, but by a man of understanding and knowledge the state thereof shall be prolonged. A poor man that oppresseth the poor is like a sweeping rain which leaveth no food. They that forsake the law praise the wicked, but such as keep the law content with them. Evil men understand not judgment, but they that seek the Lord understand all things. Better is the poor that walketh in his uprightness than he that is perverse in his ways, though he be rich. Whoso keepeth the law is a wise son, but he that is a companion of riotous men shameth his father. He that by usury and unjust gain increaseth his substance, he shall gather it for him that will pity the poor. He that turneth away his ear from hearing the law, even his prayer shall be abomination. Whoso causeth the righteous to go astray in an evil way, he shall fall himself into his own pit, but the upright shall have good things in possession. The rich man is wise in his own conceit, but the poor that hath understanding searcheth him out. When righteous men do rejoice, there is great glory. But when the wicked rise, a man is hidden. He that covereth his sins shall not prosper, but whoso confesseth and forsaketh them shall have mercy. Happy is the man that feareth always, but he that hardeneth his heart shall fall into mischief. As a roaring lion and a raging bear, so is a wicked ruler over the poor people. The prince that wanteth understanding is also a great oppressor, but he that hateth covetousness shall prolong his days. A man that doeth violence to the blood of any person shall flee to the pit. Let no man stay him. Whoso walketh uprightly shall be saved, but he that is perverse in his ways shall fall at once. He that tilleth his land shall have plenty of bread, but he that followeth after vain persons shall have poverty enough. A faithful man shall abound with blessings, but he that maketh haste to be rich shall not be innocent. To have respect of persons is not good, for a piece of bread that man will transgress. He that hasteth to be rich hath an evil eye, and considereth not that poverty shall come upon him. He that rebuketh a man afterwards shall find more favor than he that flattereth with the tongue. Whoso robbeth his father or his mother and saith it is no transgression, the same is the companion of a destroyer. He that is of a proud heart stirreth up strife, but he that putteth his trust in the Lord shall be made fat. He that trusteth in his own heart is a fool, but whoso walketh wisely he shall be delivered. He that giveth unto the poor shall not lack, but he that hideth his eyes shall have many
occurs. When the wicked rise, men hide themselves, but when they perish, the righteous increase. नीति वचन हम पढ़ेंगे 27-28 अध्याय पढ़ेंगे। BSI बाइबल में से पढ़ेंगे पहले वचन से। कल के दिन के विषय में डिंग मत मार, क्योंकि तू नहीं जानता कि दिन भर में क्या होगा। तेरी प्रशंसा और लोग करे तो करे, परंतु तू आप न करना। दूसरा तुझे सराहे तो सराहे, परंतु तू अपनी सराहना न करना। पत्थर तो भारी है और बालू में बोझ है, परंतु मूढ़ के क्रोध उन दोनों से भारी है। हालेलुया। यानी ऐसा मूर्खता के आधार से अगर कोई क्रोधित हो रहा है तो उसको हैंडल करना भारी पड़ जाता है। ओके, थोड़ा बहुत भारी पत्थर है, 4 जन मिलके उसको कंट्रोल कर सकते हैं। कुछ इवन तिनके जैसा बालू है तो भी वो किसी भी तरह से कंट्रोल कर लेंगे। लेकिन अगर मूर्ख है और वो गुस्सा हो रहा है तो उसको कंट्रोल करना भयंकर बात है। कोई कंट्रोल करना उसको भयंकर बात हो जाएगा। ओके, तो इसके लिए क्रोध को जगह, बहुत छोटी सी जगह देना है, लेकिन छोटी सी, क्योंकि वो इमोशन से हम उसको फ्रस्ट्रेट कर देंगे अगर वो यूज़ नहीं करेंगे तो वायलेंट होना, एग्रेसिव होना, समझ के साथ समय के अनुसार थोड़ा बहुत हमको जितना परमेश्वर का वचन कहता है किसी के लिए लाभदायी है उसको डांटना, तो हम डांट फटकार सकते हैं क्रोध में। लेकिन जल्दी से परमेश्वर का आत्मा हमको ओवरटेक कर लेना चाहिए, माफ़ी के आत्मा के साथ, पश्चातापी हृदय के साथ, और प्रेम और दया और शांति के साथ। ओके, मूर्ख नहीं बनना है क्रोध के विषय में। मूर्ख नहीं, अज्ञान नहीं बनना है, मूर्ख भी नहीं बनना है। ओके, 4 वचन से आगे पढ़ेंगे। क्रोध तो क्रूर और प्रकोप धारा के समान होता है, परंतु जब कोई जल उठता है तब कौन ठहर सकता है। देखिए, भले बुरे का ज्ञान जो था ना, इसका नीति उत्पत्ति में जो लिखा हुआ था कि ये फल खाना, ये फल नहीं खाना, तो भले बुरे का ज्ञान का फल के विषय में जो है ना, वहाँ जहाँ पर आदम और हवा ने खा लिया था फल, तो वहाँ से शरीर का कॉन्शियसनेस जाग उठा था। शरीर के देखो, पहले तो उनको समझ थी, ज्ञान थी, बुद्धि था, वो चुनाव कर रहे थे कौन सा फल खाना है, कौन सा नहीं खाना है, लेकिन उनका शरीर का एक्साइटमेंट जो है उनको विवश कर दिया। ठीक है, उनके शरीर की कमज़ोर अवस्था ने उनको विवश कर दिया। शरीर के अंदर भूख है, प्यास है, लेकिन क्या खाना चाहिए, क्या नहीं खाना चाहिए, क्या करना चाहिए, क्या नहीं करना चाहिए, ये जो शरीर का ज्ञान था, ओके, जो शरीर की उत्पत्ति होने के लिए था, वो ज्ञान, शरीर के उत्पन्न होने का ज्ञान जो है, डेवलप होने का ज्ञान जो है, उत्पन्न होने का, डेवलपमेंट नहीं, रिप्रोड्यूस होने का, पुनर्निर्माण, रिप्रोड्यूस, ओके, उत्पन्न होने का जो ज्ञान था, जैसा एक मनुष्य दूसरे मनुष्य को जन्म देता रहता है, वैसा वो उत्पन्न होने का जो ज्ञान है, वो शरीर का जो इमोशंस है वो सब डिस्टर्ब हो गए। वो सेटिंग में थे फल खाने से पहले। ओके, वो उसके लिए मनुष्य लाचार नहीं था, लेकिन उसी एरिया ऑफ लाइफ ने मनुष्य को लाचार बना दिया। ओके, अब उस लाचार अवस्था में, व्याकुल अवस्था में परमेश्वर भी प्रेजेंट नहीं है, तो शरीर के अवस्था में आपको हमेशा ही भला और बुरा ज्ञान ही सहायता कर सकता है, और कोई आपको बचने का रास्ता भला और बुरा ज्ञान के पास भी नहीं है। सिर्फ आप ज़िंदगी को कुछ समय तक जी सकते हैं, थोड़ा बहुत कॉम्प्रोमाइज़ यहाँ वहाँ से एडजस्टमेंट करते हुए, कैसे तो खींच कर आप अपने जीवन को कुछ ना कुछ प्रकार से अच्छा रखने का कोशिश कर सकते हैं, लेकिन उसके अंदर लाइफ नहीं है। ओके, वो जस्ट एक एडजस्टमेंट है।
तो उसके कारण ये क्रोध वगैरह, मूर्खता, क्रोध, ये सब उसके कारण हमारे कॉन्शियस को छेड़ता है। ओके, हमारा ध्यान खींच लेता है। क्रोधित होना, मूढ़ता करना, घमंड करना, ओके, फूलना, व्यर्थ में फूलना, ये सब हमारा इसीलिए हो जाता है क्योंकि वो शरीर की अवस्था के अंदर एक प्रकार का एब्सेंट ऑफ गॉड बताता है। शरीर की अवस्था में एब्सेंट ऑफ गॉड, ओके, परमेश्वर का शरीर की अवस्था में नहीं है, ये उसका कहना है। ठीक है, तो इसके लिए हम अभी शरीर में हैं, तो शरीर के अवस्था में पवित्र आत्मा का ज़्यादा संचार होने देना है शरीर में। इसके लिए पवित्र लोगों के संगति में रहो जो सच में पवित्र जीवन जी रहे हैं, क्योंकि उनके शरीर में अगर दुर्वासनाएं ज़्यादा या कम कोई भी मात्रा में है, और अगर वो लोग आपके ऊपर हाथ रख के प्रार्थना करते या उनके छुअन या उनकी संगति, उनकी आंखें, उनका शरीर का हर एक अंग कम्युनिकेट करता है, हमारे शरीर के फीलिंग्स से कम्युनिकेट करता है वो, ओके, वो एक ऑरा रहता है, उसमें वो ट्रांजैक्शंस होते रहता है, और फिर उनकी दुर्अवस्था जो भी रहेगी शरीर में पड़ा हुआ, जो भी शरीर का एब्सेंट ऑफ गॉड में जो भी दुष्टता रहती है, एब्सेंट ऑफ गॉड मतलब दुष्टता ही वहाँ पर रहती है और कुछ नहीं रहता है, ओके, वो वाला एरिया ऑफ लाइफ फिर आपके लाइफ में एंट्री कर जाएगा। फिर आपको समझ में नहीं आएगा कि ये नया स्वभाव कहाँ से आ गया मेरे पास, ओके, ये नए तरीके कहाँ से आ गई, मैं ऐसे कैसे हो गई, ऐसे अचानक से मुझे क्यों हो गया, क्योंकि आपके ऑरा को कनेक्ट किया गया है जो आपको ऐसे इमोशंस में स्टर कर देता है, जो ऐसे इमोशंस को जगाता है, क्विकनिंग करता है, जो शरीर में दुष्टता है उसको क्विकनिंग करता है। पवित्र आत्मा शरीर के दुष्टता को ख़त्म कर देता है, कंप्लीटली ज़ीरो कर देता है। लेकिन दुष्ट जगत के लोग अगर परमेश्वर के वचन के अनुसार हम नहीं चलेंगे तो उनको फ्रीडम है हमको गलत बातों में उकसाने का, ओके, लेकिन फिर हम परमेश्वर की तरफ मुड़ कर आ जाएंगे तो दोबारा हम जैसे थे परमेश्वर के संगति में वैसे स्वीटनेस ऑफ हार्ट से हम भर जाएंगे, ओके। तो ये तरह से है हम लोगों का लाइफ, भला और बुरा ज्ञान, जो ये सारा प्रोवर्ब्स के अंदर वही इमोशंस के बारे में बहुत ज़्यादा दिया है। भला इमोशंस कैसे इस्तेमाल करना है, बुरा इमोशंस को किस प्रकार से नलीफाई करना है, कट ऑफ कर देना है, ओके, कैसा, कौन सा तरीका है, कौन सा रास्ता है, और परमेश्वर उसके विषय में क्या ज्ञान दिया था सुलेमान को कि ऐसे इमोशंस अगर रहेंगे तो क्या करना है, अगर ऐसा कुछ नज़ारा दिख रहा है तो क्या समझना है, ओके। ये ज्ञान दिया था सुलेमान को, जो सुलेमान चला और बहुत ज़्यादा मात्रा में उसने तरक्कियों को प्राप्त किया था, जो परमेश्वर का वरदान था उसके ऊपर, ओके। ज्ञान, समझ, बुद्धि उसने प्राप्त की थी और उसी के आधार से ये लिखा हुआ है। इसके लिए हम प्रोवर्ब्स, नीति वचन जब पढ़ते हैं तो लाइफ को पढ़ रहे हैं, जो लाइफ है, लाइफ यानी भला बुरा ज्ञान और परमेश्वर क्या कहता है उसके विषय में, ये हम पढ़ रहे होते हैं, ठीक है। हम पढ़ेंगे आगे 4था वचन, क्रोध तो क्रूर और प्रकोप धारा के समान होता है, परंतु जब कोई जल उठता है तब कौन ठहर सकता है। खुली हुई डांट गुप्त प्रेम से उत्तम है। देखो, गुप्त प्रेम से उत्तम है। आप किसी को चाहते हैं, अगर आपको पसंद है कोई, तो आप उसके विषय में खुल कर आ जाना है और उसमें सुधार को लेना है। परमेश्वर का वचन जो उसके अंदर सेट कर सकता है, उसी दिशा में अपने प्रेम को आगे बढ़ाना है। लेकिन अगर आप ऐसा नहीं करेंगे तो फ़ायदा नहीं है, वेस्टिंग ऑफ टाइम है वो, ओके। जो घाव मित्र के हाथ से लगे वह विश्वास योग्य है, परंतु बैरी अधिक चुंबन करता है। बैरी अधिक चुंबन करता है। मित्र ठोकर तो देते हैं लेकिन फिर भी ठीक लगता है, लेकिन बैरी अधिक चुंबन करता है। संतुष्ट होने पर मधु का छत्ता भी फीका लगता है।
परंतु भूख का सब कड़वी वस्तुएं भी मीठी जान पड़ती है। ये भूख लाचारी है। ओके, ये वो वाली भूख नहीं है जो हम खाना खाते हैं और भूख लगी, वो नहीं। शरीर का अंदर से परमेश्वर का स्थान निकल गया, दुष्टता आ गई। ये दुष्टता जो है वो भूख है। ओके, परमेश्वर का एब्सेंट जो है वो जगह सब कुछ भूखा पड़ा हुआ है। उसको प्रोविशन करने वाला परमेश्वर था, लेकिन परमेश्वर उन बातों को प्रोवाइड नहीं करता है जो वचन के बाहर है। वो भूख की तड़प फिर आपको कोई बुरे रास्ते, कोई इविल पावर या कोई चाल चला के अभी करना पड़े तो भी आप कर लेंगे, ऐसी वो अवस्था है मनुष्य के अंदर। इसके लिए हमको परमेश्वर के आत्मा के फलों से भरपूर होकर चलते रहना है। परमेश्वर के आत्मा के संगति में भरपूर भर जाना है शरीर में। ओके, और शरीर उसी के कारण फिर ऐसे व्याकुल कर देने वाले दुष्टता के भूख से तड़पता नहीं है। ठीक है, स्थान छोड़कर घूमने वाला मनुष्य उस चिड़िया के समान है जो घोंसला छोड़कर उड़ती फिरती है। अब हम बाइबल रीडिंग कर रहे हैं, बाइबल रीडिंग छोड़कर हम इसके साथ साथ कुछ सीख भी रहे हैं, तो एक प्रकार से हम स्थान छोड़ रहे हैं और घूम रहे हैं यहाँ वहाँ पर। ओके, जैसे तेल और सुगंध से वैसे ही मित्र के हृदय की मनोहर सम्मति से मन आनंदित होता है। जो तेरा और तेरे पिता का भी मित्र हो उसे न छोड़ना, और अपनी विपत्ति के दिन अपने भाई के घर न जाना। प्रेम करने वाला पड़ोसी दूर रहने वाले भाई से कहीं उत्तम है। हे मेरे पुत्र, बुद्धिमान होकर मेरा मन आनंदित कर, तब मैं अपने निंदा करने वाले को उत्तर दे सकूंगा। बुद्धिमान मनुष्य विपत्ति को आती देखकर छिप जाता है, परंतु भोले लोग आगे बढ़े चले जाते और हानि उठाते हैं। जो पराये का उत्तरदायी हो उसका कपड़ा, और जो अनजान का उत्तरदायी हो उससे बंधक की वस्तु ले ले। जो भोर को उठकर अपने पड़ोसी को ऊंचे शब्द से आशीर्वाद देता है उसके लिए यह शाप गिना जाता है। झड़ी के दिन पानी का लगातार टपकना और झगड़ालू पत्नी दोनों एक से है। जो उसको रोक रखे वह वायु को भी रोक रखेगा, और दाहिने हाथ से वह तेल पकड़ेगा। जैसे लोहा लोहे को चमका देता है, वैसे ही मनुष्य का मुख अपने मित्र की संगति से चमकदार हो जाता है। जो अंजीर के पेड़ की रक्षा करता है वह उसका फल खाता है। इसी रीति से जो अपने स्वामी की सेवा करता उसकी महिमा होती है। जैसे जल में मुख की परछाई मुख को प्रकट करती है, वैसे ही मनुष्य का मन मनुष्य को प्रकट करता है। जैसे अधोलोक और विनाशलोक, वैसे ही मनुष्य की आंखें भी तृप्त नहीं होती। तो आपकी आंखों में तृप्त होना है तो आपके पास एक ही रास्ता है, परमेश्वर का वचन। उसके अलावा आपको आंखें कभी भी संतुष्ट रहने नहीं देगी। 21 वचन से आगे पढ़ेंगे। जैसे चांदी के लिए कुठाली और सोने के लिए भट्टी है, वैसे ही मनुष्य के लिए उसकी प्रशंसा है। चाहे तो मूर्ख को अनाज के बीच ओखली में डालकर मुसल से कूटे तो भी उसकी मूर्खता नहीं जाने की। मुझे ये बात बहुत पसंद है। अगर मैं किसी को डांट फटकारती हूँ, अगर मैं किसी को गुस्सा देती हूँ और वह उस गुस्से के अधीन आ जाता है और मान लेता है कि वह गलत कर रहा है, या शर्म से झुक जाता है और सोचता है कि नहीं, मैंने ऐसे नहीं करना चाहिए, मुझे ऐसे लोग बहुत पसंद है, क्योंकि वो डांट फटकार के कारण मेरा मन जीत लेते हैं। डांट खाने से नम्र हो जाते हैं, सुधार ले लेते हैं, दोबारा ना करने का वो ध्यान रखते हैं। मुझे बहुत पसंद है ऐसे लोग। 23 वचन से आगे। अपनी भेड़ बकरियों की दशा भली भांति मन लगाकर जान ले,
और अपने सब पशुओं के झुंडों की देखभाल उचित रीति से कर, क्योंकि संपत्ति सदा नहीं ठहरती और क्या राज मुकुट पीढ़ी से पीढ़ी तक बना रहता है। जब कटी हुई घास उठा ली जाती और नई घास दिखाई देती और पहाड़ों की हरियाली काट कर इकट्ठी की जाती है, तब भेड़ों के बच्चे तेरे वस्त्र के लिए होंगे और बकरों के द्वारा खेत का मूल्य दिया जाएगा, और बकरियों का दूध इतना होगा कि तू अपने घराने समेत पेट भर के पिया करेगा, और तेरी दासियों का भी जीवन निर्वाह होता रहेगा। 28 अध्याय 1 वचन से पढ़ेंगे। दुष्ट लोग जब कोई पीछा नहीं करता तब भी भागते हैं, परंतु धर्मी लोग जवान सिंहों के समान निडर रहते हैं। हालेलुया। देश में पाप होने के कारण उसके हकीम बदलते जाते हैं, परंतु समझदार और ज्ञानी मनुष्य के द्वारा सुप्रबंध बहुत दिन के लिए बना रहेगा। जो निर्धन पुरुष कंगालों पर अंधेर करता है, वह ऐसी भारी वर्षा के समान है जो कुछ भोजन वस्तु नहीं छोड़ती। जो लोग व्यवस्था को छोड़ देते हैं वे दुष्ट को प्रशंसा करते हैं, परंतु व्यवस्था पर चलने वाले उनका विरोध करते हैं। बुरे लोग न्याय को नहीं समझ सकते, परंतु यहोवा को ढूंढने वाले सब कुछ समझते हैं। टेढ़ी चाल चलने वाले धनी मनुष्य से खराई से चलने वाले निर्धन पुरुष ही उत्तम है। खराई से चलने वाला निर्धन पुरुष ही उत्तम है। जो व्यवस्था का पालन करता वह समझदार सुपुत्र होता है, परंतु उड़ाऊ का संगी अपने पिता का मुंह काला करता है। जो अपना धन ब्याज आदि बढ़ती से बढ़ाता है वह उसके लिए बटोरता है। जो कंगालों पर अनुग्रह करता है, जो अपना कान व्यवस्था सुनने से मोड़ लेता है, उसकी प्रार्थना घृणित ठहरती है। जो सीधे लोगों को भटकाकर कुमार्ग पर ले जाता है, वह अपने खोदे हुए गड्ढे में आप ही गिरता है, परंतु खरे लोग कल्याण के भागी होते हैं। हालेलुया। धनी पुरुष अपनी दृष्टि में बुद्धिमान होता है, परंतु समझदार कंगाल उसका मार्ग समझ लेता है। जब धर्मी लोग जयवंत होते हैं तब बड़ी शोभा होती है, परंतु जब दुष्ट लोग प्रबल होते हैं तब मनुष्य अपने आप को छिपाता है। ये मेरे साथ हमेशा हुआ है, अपने आप को छिपा लेना पड़ता है मुझे। जो अपने अपराध छिपा रखता है उसका कार्य सफल नहीं होता, परंतु जो उनको मान लेता और छोड़ भी देता है उस पर दया की जाएगी। हालेलुया। जो मनुष्य निरंतर प्रभु का भय मानता रहता है वह धन्य है। हालेलुया। परंतु जो अपना मन कठोर कर लेता है वह विपत्ति में पड़ता है। देखा, इसीलिए मैं कहती हूँ कि दुष्ट का अंत निश्चित है। मन कठोर करने वाले का कभी भी फायदा नहीं होता है। कभी मन कठोर मत करो। जो वचन आपको कह रहा है मत करो तो आपने नहीं करना है। कंगाल प्रजा पर प्रभुता करने वाला दुष्ट गरजने वाले सिंह और घूमने वाली रीछ के समान है। जो प्रधान मंद बुद्धि का होता है वही बहुत अंधेर करता है, और जो लालच का बैरी होता है वह दीर्घ आयु होता है। हालेलुया। देखो, लालच का बैर कीजिए, ठीक है। किसी का भी कुछ भी कैसे भी हो उसके पीछा मत कीजिए। वो दूसरों का है, आप उसको छोड़ देना है, आपका आयुष्य बढ़ जाएगा, ठीक है। जो किसी प्राणी की हत्या का अपराधी हो वह भागकर गड्ढे में गिरेगा, कोई उसको न रोकेगा। जो सीधाई से चलता है वह बचाया जाता है, परंतु जो टेढ़ी चाल चलता है वह अचानक गिर पड़ता है। देखो, परंतु टेढ़ी चाल चलता है वह अचानक गिर पड़ता है। टेढ़ी चालें नहीं चलना है। मसीह में है या नहीं है फर्क नहीं पड़ता है। टेढ़ी चालें हमेशा गिरा देगी आपको। जो अपनी भूमि को जोता बोया करता है उसका पेट भरता है, परंतु जो निकम्मे लोगों की संगति करता है वह कंगालपन से घिरा रहता है। ओ जीसस।
सच्चे मनुष्य पर बहुत आशीर्वाद होते रहते हैं, परंतु जो धनी होने में उतावली करता है वह निर्दोष नहीं ठहरता। पक्षपात करना अच्छा नहीं, और यह भी अच्छा नहीं कि पुरुष एक टुकड़े रोटी के लिए अपराध करे। लोभी जन धन प्राप्त करने में उतावली करता है और नहीं जानता कि वह घटी में पड़ेगा। जो किसी मनुष्य को डांटता है वह अंत में चापलूसी करने वाले से अधिक प्यारा हो जाता है। हालेलुया। जो अपने माँ बाप को लूट कर कहता है कि कुछ अपराध नहीं, वह नाश करने वाले का संगी ठहरता है। हालेलुया। लालची मनुष्य झगड़ा मचाता है, और जो यहोवा पर भरोसा रखता है वह हष्ट पुष्ट हो जाता है। हालेलुया। लालची मनुष्य हमेशा रगड़े झगड़े लगाएगा, ये मेरा है, ये मेरा है, ये मेरे अधिकार का है, ये लोग, ये मेरा है, ये सब मेरा है, ये मेरा है। झगड़े लगाते रहता है। ओके। लेकिन यहोवा पर भरोसा रख के जो जीता है वो हष्ट पुष्ट हो जाता है। जो अपने ऊपर भरोसा रखता है वह मूर्ख है, और जो मूर्ख है और जो बुद्धि से चलता है वह बचता है। हालेलुया। जो निर्धन को दान देता है उसे घटी नहीं होती, परंतु जो उससे दृष्टि फेर लेता है वह शाप पर शाप पाता है। हालेलुया। किसके पास धन कम है तो आप उसको देना, आप बचाए जाते हैं। ओके। ये मत देखो कि आप क्यों देना है, मत देखिए ऐसा। दे दीजिए, जिसके पास धन कम है तो दे दीजिए, कोई प्रॉब्लम नहीं है। अगर आपके पास है तो दे दीजिए। ओके। लेकिन अगर किसी के पास धन कम है, जैसे कोई ऑटो रिक्शा वगैरह ऐसा चलाते हैं, उनके पास धन बहुत कुछ हो सकता है, लेकिन कोई ऐसे ड्राइवर्स भी रहते हैं जो उसी के ऊपर अपना रोजी रोटी चलाते हैं। ओके। तो उनके धन को ध्यान रखिए कि उनको धन बटोरना है, क्योंकि उनकी ज़िंदगी उसके ऊपर चलती है। आप हमेशा उदारता के साथ सब्ज़ी वाला मार्केट प्लेसेस में आप देख सकते हैं कि कितने सारे लोग क्यों बैठे हैं, उसी के ऊपर उनका रोजी रोटी चलता है। कभी आप वहाँ पर कंजूसी नहीं करना है, दे देना है, छोड़ दो, क्या फ़र्क पड़ता है। ओके। तो आपको आशीष मिलेंगे। ठीक है। जब दुष्ट लोग प्रबल होते हैं तब तो मनुष्य ढूंढे नहीं मिलते। मेरे साथ ये हमेशा मेरा एक्सपीरियंस है। जब दुष्ट प्रबल होते हैं तो लोग मुझे ढूंढते रहते हैं, लेकिन मैं मिलती नहीं हूँ उनको कहीं पर भी। यानी उनका सामना नहीं करती हूँ मैं, उनको मिलती नहीं, मतलब मैं उनके क्या कहते हैं, छिप जाती हूँ मैं, इतना काफ़ी है। परंतु जब वे नष्ट हो जाते हैं तब धर्मी उन्नति करते हैं। हालेलुया। जब आपकी उन्नति हो रही होती है तो आप समझ जाइए कुछ तो दुष्ट का नष्ट हो चुका है। प्रभु यीशु हम सबको इस विषय में काफ़ी ज्ञान दे। परमेश्वर हमें भले बुरे ज्ञान से बचाकर परमेश्वर अपने भय के ज्ञान में हमको बढ़ाए, उसकी उन्नति, उसके रास्ते हमें प्रिय लगे, और हम अपने जीवन के बैरी नहीं, हम अपने जीवन के दोस्त बन जाए और परमेश्वर के लिए जिए। पिता हमारी सहायता कर, पवित्र आत्मा हमारी मदद कर। हमने जितने वचन आज शुरू से अंत तक, जितना भी सुबह से लेकर अभी तक पढ़ा, सब कुछ बटोर कर पिता परमेश्वर हम तेरे सम्मुख खड़े हैं कि हमें इसके अंदर फिट एंड फिक्स कर, कुछ खाली हाथ जाने मत दे। सब कुछ के अंदर बड़ा सा उत्साह भर दे कि हम उसे पूर्ण रूप से ग्रहण कर पाए। नासरी यीशु मसीह के नाम में बहुत बड़ा उजियाला हमारे अंदर आज समाने दे, और हमारे रास्ते सरलता की ओर और जीवन की ओर बढ़ने दे। यीशु नासरी के नाम में विनती करते हैं, सुन और कबूल कर मेरे पिता। आमीन, आमीन, आमीन। हम 2 साल के बाइबल रीडिंग में 2 years बाइबल रीडिंग प्लान, लूक 22 चैप्टर 14 वर्स से 23 वर्स पढ़ना है।
फर्स्ट सैमुअल 29 चैप्टर, लूका रचित सुसमाचार 22 अध्याय का 14 से 23 वचन पढ़ना है। पहले शमूएल की पुस्तक 29 अध्याय पढ़ना है। हमने अपने अकेले में पर्सनल टाइम में इन वचनों को पढ़ना है। जब हम अपने व्यक्तिगत समय में पर्सनल टाइम में इन्हें पढ़ेंगे तो हमारे अंदर से परमेश्वर बहुत ज्ञान बढ़ाएगा और वो ज्ञान ही हमारी संपत्ति है, हमारा धन है। उसके अनुसार हमारे जीवन को परमेश्वर एक मंजिल में रखना चाहता है। ऐसा होने के लिए परमेश्वर ने हमको अनुग्रह दिया है। 2 साल के अंत में हम देखेंगे हम परमेश्वर चाहता है उस डेस्टिनी में पाए जाएंगे और ऐसा अनुग्रह का हमने निश्चित लाभ उठाना है। प्रभु यीशु मसीह हम सब के साथ बना रहे। आमीन, आमीन, आमीन। थैंक यू फादर गॉड। धन्यवाद करते हैं जीवन की रोटी प्रभु यीशु, तेरा वचन हमारे अंदर आज मौजूद है। नासरी यीशु मसीह के नाम में विनती करते हैं पवित्र आत्मा हमारे अंदर का साहस, धैर्य, हर एक बिखरा हुआ जिंदगी, हर एक टूटा फूटा दीवार, नासरी यीशु मसीह के नाम में विनती करते हैं पवित्र आत्मा फिट एंड फिक्स कर हमें ऑर्डरलीनेस में, व्यवस्थितपन में लेकर आ। पवित्र परमेश्वर चाहता है उस व्यवस्थितपन में, उस फिट एंड फिक्स सिचुएशंस पे हमें लेकर चल। नासरी यीशु मसीह के नाम में विनती करते हैं, सुन और कबूल कर मेरे पिता। आमीन, आमीन, आमीन।